پرائم ٹائم کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے راشی سٹونز انڈیا، لیلا ہوٹل کے پیچھے، بنجارہ ہلز، روڈ نمبر 3، حیدرآباد۔ فون نمبر 9912041041۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی اور پرائم ٹائم نیوز بلیٹن میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ناظمہ۔ سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر۔ BRS نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا کر دیا آغاز۔ نظام آباد اور کامرڈی کے متحدہ اضلاع کے قائدین کا KTR کی قیادت میں اہم اجلاس۔ بلدی انتخابات کے لیے 17 جنوری کو شیڈیول اور 14 فروری کو رائے دہی متوقع۔ 117 بلدیات اور 6 کارپوریشنز میں ایک ہی مرحلے میں انتخابات کی تیاریاں۔ وزیر اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ 19 تا 23 جنوری ورلڈ اکنامک فورم میں کریں گے شرکت۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے دیا بیان، کہا ڈاؤس میں تلنگانہ رائزنگ ویژن کیا جائے گا پیش۔ معظم جاہی مارکیٹ کی تاریخی عمارت ایک بار پھر لاپرواہی کا شکار۔ صاف صفائی اور نگرانی پر کوئی توجہ نہیں۔ حکومت کی سرد مہری پر مارکیٹ کے تاجروں اور سیاحوں میں تشویش۔ ریاستی ہائی کورٹ کا نئی فلموں کی ریلیز کے لیے ٹکٹ کی قیمتوں میں اضافے پر روک۔ پربھاس کی فلم راجہ صاحب کے لیے ٹکٹ کی قیمتوں میں اضافے کو کیا گیا تھا کورٹ میں چیلنج۔ نظام آباد انکاؤنٹر میں ہلاک شیخ ریاض کی اہلیہ کو ٹمریز میں ملازمت۔ حافظ محمد لئی خان کی کامیاب نمائندگی۔ اپل میں ایک سافٹ ویئر انجینئر چینی مانجے کی زد میں آ کر شدید زخمی۔ سڑکوں پر سفر کرتے وقت محتاط رہیں، پولیس کی اپیل۔ چائنا مانجے کے استعمال سے بھی کیا خبردار۔ ریاست شدید سردی کی لپیٹ میں، دن میں 11 بجے تک بھی سرد ہوائیں۔ آئندہ 3 دن تک سردی کا اثر برقرار رہے گا، محکمہ موسمیات کا بیان۔ سومناتھ مندر کی 1000 سالہ تقریب میں مودی کی شرکت۔ اورنگزیب اور غزنوی کو بنایا کڑی تنقید کا نشانہ، کہا اورنگزیب اور غزنوی ہو گئے دفن، مندر وہیں کھڑا ہے۔ موجودہ دور میں ہندوؤں کو متحد ہونے کی ضرورت، UP میں موہن بھگوت کا بیان۔ اور انڈین آئیڈل 3 کے فاتح پرشانت تمانگ کی 43 سال کی عمر میں اچانک موت، انڈسٹری میں غم کی لہر۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ BRS پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے اور آج شہر میں نظام آباد و کامرڈی کے متحدہ اضلاع کے قائدین کا مشاورتی اجلاس بھی منعقد کیا۔ اجلاس میں KTR نے کہا آئندہ بلدیاتی انتخابات میں شہری عوام کانگریس کو سخت سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کانگریس حکومت نے 2 سالوں میں شہروں کو نظر انداز کر دیا اور کوئی ترقیاتی فنڈز جاری نہیں کیے گئے، جس کے باعث عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ اجلاس میں انتخابی حکمت عملی پر غور کیا گیا اور قائدین نے BRS کے حق میں سازگار ماحول کا دعویٰ کیا۔ ریاست میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں عروج پر ہے، ایسے میں امکان ہے کہ ریاستی الیکشن کمیشن 17 جنوری کو انتخابات کا شیڈیول جاری کرے گا، جبکہ 14 فروری کو رائے دہی کا منصوبہ ہے۔ ریاست میں 117 بلدیات اور 6 میونسپل کارپوریشنز میں ایک ہی مرحلے میں انتخابات کے انعقاد پر غور کیا جا رہا ہے، ایسی اطلاعات آ رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ 16 جنوری کو حتمی ووٹر لسٹ تمام پولنگ مراکز پر لگا دی جائے گی اور اس کے بعد انتخابی شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ ماہ فروری کے پہلے ہفتے تک پرچہ نامزدگیوں کا عمل مکمل کر لینے اور انتخابی مہم کے لیے 1 ہفتے کا بھی وقت دیا جائے گا۔
रियासती वजीर IT व सनत D श्रीधर बाबू ने ऐलान किया कि हुकूमत 19 जनवरी को डाउस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में AI और लाइफ साइंस पॉलिसियों की नकाब कुशाई करेगी। उन्होंने कहा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस आलमी फोरम में रियासत की नई पॉलिसियों को पेश करते हुए तेलंगाना की सनती और तकनीकी सिमत वाज़ेह रोड मैप को मुतारिफ करवाएंगे। श्रीधर बाबू ने कहा, CBRA की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद फार्मा इकोसिस्टम में बोस्टन, सैन फ्रांसिस्को और जापान के बाद दुनिया में चौथे नंबर पर थे। श्रीधर बाबू ने कहा, FDA की मंजूरी के साथ हैदराबाद में 200 से ज़ायद लाइफ साइंस कंपनियां सरगर्म हो चुकी हैं और हुकूमत ने अब आलमी म्यार की कंपनियों के इश्तिराक से तेलंगाना लाइफ साइंस पॉलिसी तैयार की है, जिसका मकसद 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपए की सरमाकारी को राग़िब करना है और तकरीबन 5 लाख रोजगार के मौक़े पैदा करना है। निज़ामाबाद शहर की तरक्की के लिए आज 60 करोड़ रुपये के तरक्याती काम और 6 करोड़ रुपये की लागत से KV सब स्टेशन के क़याम का विनायक नगर में संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और PCC सदर व रुकन कानून साज कौंसल महेश कुमार गौड़ ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। महेश कुमार गौड़ ने कहा, निज़ामाबाद की हमाजहत तरक्की कांग्रेस का अज़्म है और ये 60 करोड़ रुपये महज शुरुआत हैं। आइंदा मजीद फंड्स जारी किए जाएंगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने भी कहा, हुकूमत ने पार्टी तफरीक के बगैर तमाम 60 डिवीजन्स को फी डिवीजन 1 करोड़ रुपये फराहम किए हैं और बुनियादी सहूलतों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతుందని చెప్పడానికి ఇవాళ నిజామాబాద్లో ప్రారంభించి శంకుస్థాపన చేసినటువంటి 60 కోట్ల నిధులతో PUFIDC నిధులతో నిజామాబాద్ పట్టణంలోని రోడ్ల నిర్మాణము, కల్వర్ట్ల నిర్మాణము, తదితర వర్క్స్ ఏవైతే నిజామాబాద్కి వల్ల లభించినాయో ఈ ఫండ్స్ ఇచ్చినట్టు ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు. ఈ ఫండ్స్ రావడంలో షబీర్ అలీ గారు, మా జిల్లా నాయకులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, పెద్దలంతా కూడా, భూపతి రెడ్డి గారు అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేసినారు. నిజామాబాద్ పట్టణాన్ని తెలంగాణలో ఒక మేటి పట్టణంగా తీర్చిదిద్దేందుకు అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు తీసుకురావడానికి మేమంతా సర్వశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ నిజామాబాద్కి అగ్రికల్చర్ కళాశాల, ఇంజనీరింగ్ కళాశాల దాదాపు 500 రూపాయల तेलुगु रियासतों में स्टार हीरोज की फिल्मों के रिलीज के दौरान टिकट की कीमतों में इजाफा करना आम बात बन गई है और टिकट की कीमतों में इजाफा अक्सर मौजूए बहस बन रहा है। ऐसी ही सूरत हाल नौजवान बाग़ स्टार प्रभास की अदाकारी की फिल्म राजा साहब के साथ पैदा हो गई है। इस फिल्म के लिए टिकट की कीमतों में इजाफे के मसले पर इंडस्ट्री में बहस छिड़ गई। हाई कोर्ट ने फिल्म राजा साहब के लिए टिकट की कीमतों में इजाफे को चैलेंज करते हुए दाखिल करदा दरख्वास्त की समाअत की। हाई कोर्ट ने एडवोकेट विजय गोपाल की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त की समाअत की, जिन्होंने कहा कि जब भी बड़ी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं तो क़वायद की खिलाफ वर्जी में टिकट की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। ज़िले के भी आसियाबाद के कासनगर में आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तेलंगाना रियासती सदर एडवोकेट मोहम्मद शकील ने अपने हमरा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ज़िले सदर मोहम्मद अलीम हुसैनी, कागज़नगर टाउन सदर शेख सलीम और मौलाना मुबीन क़ासिमी के अलावा मुक़ामी क़ायदीन के साथ मिलकर मुस्लिम लीग ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर लीग के सदर एडवोकेट मोहम्मद शकील ने कहा, IUML सन 1948 से अवामी खिदमत कर रही है। उन्होंने हर एक तबके के लोगों को पार्टी से जुड़ जाने का मशवरा दिया। इसके अलावा आने वाले बल्द इंतखाबात में रियासत के मुख्तलिफ अजला में अपने उम्मीदवार ठहराने का भी उन्होंने ऐलान किया। यहाँ पे जितने भी इश्यूज़ है, आप अलीम साहब और हमारे सूफ़ी साहब और सलीम साहब जो है हमें बताएं कि भाई यहाँ किस तरीके से और मुस्लिम लीग को मजबूत किया जा सकता है। और आने वाले वक्त में मैं भी चूँकि एक वकील हूँ, आप जो भी मसले मसाइल हैं मैं बिलखुसूस हमारे कैडर से कह रहा हूँ, सलीम भाई अपने जितने भी बच्चे वगैरह जो मुस्लिम लीग में यहाँ पे काम कर रहे हैं, अब से नहीं, यहाँ पे मुस्लिम लीग की पहले से शाख काम कर रही है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह देख के बहुत हमें मसरत हुई है कि बहुत मजबूती से जो है काम कर रहे हैं हमारे हाफिज़ अलीम साहब। तो मैं यही कहते हुए कि यहाँ के अवाम से अपील करना चाहूँगा कि वे आप आएँ और मुस्लिम लीग से जुड़ें।
यहाँ पे इंतखाबात में मुस्लिम लीग का जो है यहाँ पे परचम यहाँ पे लहराएं, यहाँ पे जो है इसको जिताएं, फिर देखें कि भाई हम किस तरीके से इंशाल्लाह यहाँ पे खिदमत अंजाम देंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि भाई यहाँ पे जितने भी हमारे जो कौम को जो है जिस तरीके से आज पूरे मुल्क भर में जो सताया जा रहा है, हमारे पास तालीम ना होना ये बहुत ही बड़ी जो है कमज़ोरी है। हम यहाँ पे तालीम में जो है यहाँ पे तालीमी मयार को भी बढ़ाएंगे। हम केरला में जो है केरला और तमिलनाडु का जो मॉडल है, हमारे कायद भी यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डॉक्टर सैयद वलीउल्लाह खादरी AIYF के रियासती सदर और CPI स्टेट काउंसिल के रुकन कॉमरेड स्टालिन, CPI हैदराबाद ज़िले असिस्टेंट सेक्रेटरी कॉमरेड के यादगिरी, कॉमरेड सलीम खान शांतिनगर हैदराबाद सेक्रेटरी, कॉमरेड सैफ खान CPI हैदराबाद काउंसिल के रुकन, कॉमरेड दशरथ CPI लीडर बेगमपेट कलियान हैदराबाद, AIYF लीडर चिंतू, AISF लीडर मोहम्मद सलमान और मोहम्मद आफ्ताब हुसैन बेगमपेट पुराना पुल हैदराबाद मुनक़िदा CPI सद साला तकारीब मुहिम जत्था प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर इन कायदीन ने आवाम से अपील की है कि वो CPI के 100 साला सद साला अजीम अवामी जलसे को कामयाब बनाएं जो 18 जनवरी को खम्मम में मुनक़िद हो रहा है। और यहाँ के आदिवासी और यहाँ के माइनॉरिटी, यहाँ के जो भी गरीब है उनके लिए दी थी, लेकिन आज उनके संविधान पर हमला हो रहा है। आज उनके संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज संविधान के अंदर जो हक हमें मिले हैं, जो हमें सुविधाएं मिली हैं, उस सुविधाओं को हटाने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल 21 पर हमला, आर्टिकल 15 पर हमला, आर्टिकल 19 पर हमला, हर चीज यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की बताए हुए बातों पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए आज CPI आपसे अपील करती है, इस देश को बचाना है तो इस देश के अंदर CPI को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये देश सेकुलर रहना है, ये देश बाबा साहब के विचारों पर चलना है। तो यहाँ पर वामपंथ और कम्युनिस्ट पार्टी को आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर कम्युनिस्ट पार्टी हिंदुस्तान के अंदर नहीं बचेगी, नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ पर आने वाले दिनों में जिस तरह ऑपरेशन खगन के नाम पर हाफिज़ मोहम्मद लई खान की कामयाब व मौसर नुमाइंदगी हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बी की खुसूसी दिलचस्पी और सिफारिश पर निज़ामाबाद इनकाउंटर में हलाक मरहूम शेख रियाज की बेवा सनोबर नाज़िमीन को हुकूमत की जानिब से निज़ामाबाद टिमरीज़ गर्ल्स टीम में आउट सोर्सिंग पर मुलाजिमत के अहकाम हवाले कर दिए गए हैं। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने शेख रियाज की फैमिली के लिए तैयार शुदा डबल बेडरूम मकान की मंजूरी को भी यकीनी बनाया। इसी खुसूस में शेख रियाज मरहूम की फैमिली ने हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और हाफिज़ मोहम्मद लई खान से इजहार तशक्कुर किया है। उपल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस वक्त जख्मी हो गए जब चीनी मांझे ने उनकी गर्दन को काट दिया। हैदराबाद इवेंट कैलेंडर के मुलाजिम साई वर्धन रेड्डी उपल मेट्रो स्टेशन पर अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि चीनी मांझा ने उनकी गर्दन को काट दिया। मुकामी लोगों ने उन्हें फौरी तौर पर देखा और फिर अस्पताल पहुंचा दिया। साई वर्धन का इलाज चल रहा है। पुलिस ने लोगों से कहा कि वो सड़कों पर सफ़र करते वक्त हद दर्जे एहतियात बरते। पुलिस ने लोगों को चीनी मांझे के इस्तेमाल से भी खबरदार किया और कहा कि फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। मौज़म जाही मार्केट शहदाबाद की तारीख़ी इमारतों फ़न तामीर का अजीम शाहकार है। शहर के दरमियान में वाक़ तारीख़ी इमारत का कोई पुरसान हाल नज़र नहीं आ रहा है। पेश नाज़रीन हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी की ये खुसूसी रिपोर्ट। हैदराबाद फरखंदा बुनियाद में फ़न तामीर की ऐसी शाहकार इमारतें पाई जाती हैं जिन्हें इस तारीख़ी शहर का फ़ख्र, इसका वक़ार और इसकी गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत कहा जा सकता है। ऐसी ही पुरशिकवा और अजीमशान इमारतों में मौज़म जाही मार्केट भी शामिल है। पूरी तरह ग्रेनाइट से तामीर करदा ये इमारत हैदराबाद आने वाले कौमी और बैनुल अक़वामी सयाहों को अपनी जानिब खींच लेती है। वाज़ेह रहे कि सन 1933 में आसिफ साबिक़ नवाब मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर के दौर हुक्मरानी में मौज़म जाही मार्केट की तामीर का आगाज़ हुआ और फिर सन 1935 में यानी सिर्फ 2 बरसों में ही तामीर मुकम्मल हो गई, जिस पर 4 लाख रुपये के मसारिफ आए। मौज़म जाही मार्केट की तामीर का मंसूबा सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड की निगरानी में बनाया गया। हुस्न इत्तेफाक से हुजूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली ख़ान के दूसरे फर्जंद शहजादा नवाब मीर शुजात अली ख़ान बहादुर मौज़म जाही सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड के सरबराह भी थे।
इस मार्केट को मौज़म जाही से मौसूम किया गया। आसिफ साबे ने 1912 में सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड की बुनियाद डाली थी और जहां तक मौज़म जाही मार्केट का सवाल है, 1077 एकड़ अराजी पर फैली हुई है, जहां एक ही छत तले आवाम के लिए किराना सामान से लेकर फूल, फल, खुश्क मेवे, आइसक्रीम, मिठाई और सब्जी भी दस्तयाब रहती है। 2020 में उस वक्त की BRS हुकूमत के दौरान रियासती वजीर बल्दी उमूर KTR ने मौज़म जाही मार्केट की अज़मत रफ्ता की बहाली में खुसूसी दिलचस्पी ली और फिर देखने वाले मौज़म जाही मार्केट की खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। लेकिन अफसोस के अब फिर से ऐसा लगता है कि हुकूमती इदारे और ख़ास तौर पर वहाँ आने वाले लोग मौज़म जाही मार्केट को बुरी तरह नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने इस इमारत का दौरा किया और देखा कि जहाँ बजा कचरे के पैकेट्स पड़े हुए हैं, दीवारों पर लोग बिना किसी हिचकिचाहट के थूक रहे हैं और ग्रेनाइट का रंग भी तब्दील हो गया है। प्री वेडिंग शूटिंग के लिए आने वाले जोड़े भी मौज़म जाही मार्केट की तबाही का बायस बन रहे हैं। हद तो यह है कि चूहों की इस कदर कसरत है कि इससे इमारत की बुनियादें भी कमज़ोर हो सकती हैं। ये भी देखा गया है कि मौज़म जाही मार्केट के मुख्तलिफ हिस्सों में खुदरो दरख्त उगाए हैं। 100 से ज़्यादा दुकानात और स्टॉल्स होने के बावजूद मौज़म जाही मार्केट इन शहरियों की मुंतज़िर है जो इसकी सफाई का ख्याल रख सकें और मेंटेनेंस पर तवज्जो मरकूज़ करें, वरना इस शानदार इमारत की तबाही के ज़िम्मेदार हम सब रहेंगे। ये इमारत फ़न तामीर का शाहकार ही नहीं बल्कि हमारी तहज़ीब और रिवायत की नुमाइंदा निशानी है। उस्मानिया तर्ज़ तामीर के इस लाजवाब नमूने की वसी और अरीज़ सहन में 100 फीट बुलंद फ्लैग पोस्ट नस्ब किया गया है। 100 फीट बुलंद फ्लैग पोस्ट नस्ब किया गया है, जबकि इसके बाबू दाखिले पर मौजूद क्लॉक टावर वहां से गुजरने वालों को वक्त की अहमियत बताने का भी काम करता है। मौज़म जाही मार्केट के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि वहाँ बहुत बड़ा पान बाजार हुआ करता था, जहाँ अनवा अक़साम के पान बनाए जाते थे। बहरहाल मौज़म जाही मार्केट जैसी तारीख़ी इमारत और तारीख़ी शाहकार की हिफाजत हम सब हैदराबादियों का फ़र्ज़ बनता है, वरना बेशुमार दूसरी इमारतों की तरह इन इमारतों का वजूद भी एक दास्तान बनकर बाकी रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी, हैदराबाद। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नरेटमेंट पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ सफील गोड़ा कट्टा माई सम्मा मंदिर में बेहरमती का वाक़या पेश आया, जहां एक नामालूम शख्स ने मंदिर में मूर्ति के सामने मुबैना तौर पर पेशाब कर दिया। मुकामी अवाम ने नौजवान की सरगर्मियों पर नजर रखने के बाद इसको पकड़ लिया और पिटाई कर दी। इस वाक़े के बाद इलाके में शदीद कशीदगी पैदा हो गई है। अवाम में सख्त गम व गुस्सा है। सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस ने मंदिर और अतराफ में भारी बंदोबस्त कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस स्टेशन ने फौरी कार्रवाई करते मुलजिम को हिरासत में ले लिया। रियासत में चलने वाली ठंडी हवाओं ने अवाम को खासी परेशानी मुब्तला कर दिया है। रात के वक्त सर्दी ज़्यादा महसूस तो हो रही है, लेकिन सुबह सवेरे भी ठंड बरकरार रह रही है। सुबह 8 बजे से 11 बजे के दरमियान और फिर शाम 5 से 7 बजे के वक्त सर्द हवाएं लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर रही हैं। जुमा की रात से हफ्ते की सुबह तक रियासत के कई इलाकों में कम अज़ कम दर्जे हरारत दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मशीक और जुनूब मशीक सिमत से निचली सतह की हवाएं चल रही है। इसकी वजह से आइंदा 3 दिनों तक सर्दी यूं ही बरकरार रहेगी।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के सबरा और पार्लियामेंट असद ओवैसी ने UAPA कानून के तहत मुस्लिम नौजवानों को तवील मुद्दत तक जेल में रखे जाने पर अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया और इस कानून की खामियां भी अवाम के सामने रखी। दरअसल उन्होंने आज महाराष्ट्र में एक जलसे आम से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। 27 पेजेस की डाइसेंट रिपोर्ट मैंने दिया और जब पार्लियामेंट में बिल लाया गया था तो मैंने पूरी दलीलों के साथ मोदी की हुकूमत को बेनकाब किया, एक्सपोज किया कि ये सिर्फ और सिर्फ कानून मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहों को छीनने के लिए लाया गया। उस बिल को फाड़कर मैंने पार्लियामेंट के फर्श पर फेंका और मैं आज भी बता रहा हूँ, ये कानून का ऐसा इस्तेमाल होगा जहाँ से हमारी वक्फ की जायदादें ख़त्म कर दी जाएंगी। या तो कोई मुस्तकबिल में कोई वक्फ ना करे या है तो उसको मुसलमानों से छीन लिया जाए। दूसरी तरफ सेकुलर नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं। आप पूछिए इन लोगों से कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, 185 लोगों की मौत हुई और 11 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से RSS सरबराह मोहन भागवत ने मथुरा में मजहबी तकरीब से खिताब किया और कहा, मौजूदा दौर में हिंदुओं को मुत्तहिद होने की जरूरत है। वास्तव में यहां खड़ा रह के 2 शब्द बोलने की मेरी पात्रता यहां नहीं है। केवल संतों की आज्ञा है, इसलिए मैं खड़ा हूं। क्योंकि धर्म के बारे में, भक्ति के बारे में इधर उधर से सुन के पढ़ के थोड़ी सी तोता रटंत कर लेना, ये तो कर सकता हूं, लेकिन जहां भाव भक्ति अनुभूति से संपन्न महापुरुष बैठे हैं, उनके सामने इन सब बातों के बारे में कुछ बोलना ये दुस्साहस भी होगा और ये क्षमता भी नहीं है। परंतु देश राष्ट्र का काम मैं करता हूं और हम सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्र ही धर्म के लिए बना है। उसका निर्माण ही इसलिए हुआ कि समय समय पर दुनिया को धर्म ज्ञान से हम आलोकित करें, अपने जीवन से लोगों को ये धर्म जीवन कैसे जिया जाता है इसकी शिक्षा दे। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। अपने अपने चरित्र की शिक्षा हमको देखकर दुनिया ग्रहण करे, ऐसा हमारा जीवन हो। तो बात वही है, करने की बात है। मोदी ने आज सोमनाथ मंदिर के क़याम के 1000 साल की तकरीब में शिरकत की और खिताब किया और अपने खिताब में औरंगजेब और महमूद गजनवी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा, ये दोनों नहीं रहे मगर सोमनाथ मंदिर वहीं का वहीं मौजूद है। प्रभास पाटन का एक क्षेत्र भगवान शिव का अपना क्षेत्र तो है, इसकी पवित्रता भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी है। महाभारत काल में पांडवों ने भी इस तीर्थ में तपस्या की थी। इसलिए ये अवसर भारत के अनगिनत आयामों को नमन करने का भी अवसर है। ये भी एक सुखद संयोग है कि आज जब सोमनाथ मंदिर के इस स्वाभिमान यात्रा के 1000 साल पूरे हो रहे हैं, तो साथ ही 1951 में हुए इसके पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। मैं दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुभकामनाएं देता हूं।
साथियों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि हमें हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ और भारत में डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों के दरमियान दिल्ली में चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट का खौफ दिखाकर बुजुर्ग NRI जोड़े से 14 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। दिल्ली में दर्ज इस मामले में 77 साला खातून ने पुलिस को बताया कि किस तरह कॉल करने वालों ने कानून का हवाला देकर उन पर बार बार दबाव डाला और RTGS के जरिए रकम ट्रांसफर करवा ली। दिल्ली पुलिस की IFS यूनिट ने FIR दर्ज करते मामले की तहकीकात शुरू कर दी। इन्वॉल्व है, तो मैंने कहा कौन सा नंबर से, तो उन्होंने जो नंबर मेरे को दिखाया, मैंने कहा ये मेरा नंबर ही नहीं है, तो आप क्या बोल रहे हैं? तो कहते हैं कि नहीं, ये नंबर तो कट जाएगा क्योंकि आपने आपको अगेंस्ट FIR हुआ है, तो हमने उन्होंने FIR नंबर मेरे को दिया। हमने बोला नहीं, आपको कोलाबा पुलिस से कांटेक्ट करवाते हैं हम, तो वो आपको बताएंगे कि क्या करना है आगे। और उनको ये भी बोल दिया कि उनको बोलो कि मेरे को एज सुन एज पॉसिबल मेरे को इसका सोल्यूशन बताइए कि मैं कैसे, मेरे को क्लीन सर्टिफिकेट दीजिए जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो जब ड्यूटी ऑफिसर आया तो उन्होंने बताया मैं विक्रांत सिंह राजपूत हूँ, मैं अपना रैंक भी बताया, ये किया वो किया, और आपको पता है कि आप बैंक में कैसे अकाउंट खोलते हैं, आपका मुंबई में कैनरा बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है आपके नाम पे, इंदिरा तनेजा के नाम पे। मैंने कहा मैं मुंबई गई नहीं, और ऊपर से हम जब भी खोलते हैं तो दोनों हस्बैंड वाइफ टुगेदर खोलते हैं, मैंने अकेले तो कोई अकाउंट खोला कभी भी नहीं है। नहीं, आपके थंब इम्प्रेशंस भी हैं, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये सब इंफॉर्मेशन है, ये वो है। आपने कहीं छोड़ा था, कहीं रखा था, किसी ने उसको मिसप्लेस किया। मैंने कहा मेरे पास हमेशा होते हैं, किसी ने यूज नहीं किया। तो फिर बोलने लगे ये पता है ये जितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, नरेश गोयल ये जो बंदा है, आई थिंक NRI है, जेट एयरवेज में है, इसने कुछ 200 करोड़ की 500 करोड़ पता नहीं, उसने इतना हमारे नेशनल, और आप तो इंडियन आइडल 3 में फतेह का परचम लहराने वाले मशहूर गुलकार और अदाकार प्रशांत तमांग का महज 43 साल की उम्र में देहांत हो गया। इस खबर ने दुनिया तफरी में रंजो गम का माहौल पैदा कर दिया। तमांग ने 2007 में अपनी आवाज़ से लाखों दिलों को मशहूर कर लिया था और कई सालों तक मौसीकी और अदाकारी दोनों में अपनी शिनाख्त बनाई, लेकिन अचानक 11 जनवरी की सुबह आज उन्होंने इस दुनिया को खैरबाद कह दिया। आज प्रशांत तमांग को दिल का दौरा पड़ा, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। उनके अचानक देहांत की खबर से मौसीकी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग गम में डूब गए। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। BRS ने बलदियाती इंतखाबात की तैयारियों का कर दिया आगाज। निजामाबाद और कामेडी के मुत्तहिदा अजला के कायदीन का KTR की क़यादत में अहम इजलास। बलदी इंतखाबात के लिए 17 जनवरी को शेड्यूल और 14 फरवरी को रायदही मुतवक्के। 117 बलदियात और 6 कॉर्पोरेशंस में एक ही मरहले में इंतखाबात की तैयारियां। वज़ीर आला सतही वफ्द के साथ 19 ta 23 जनवरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में करेंगे शिरकत। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने दिया बयान, कहा दाऊस में तेलंगाना राइजिंग विजन किया जाएगा पेश। मौजम जाही मार्केट की तारीखी इमारत एक बार फिर लापरवाही का शिकार। साफ सफाई और निगरानी पर कोई तवज्जो नहीं। हुकूमत की सर्द मोहरी पर मार्केट के ताजिरों और सयाहों में तशवीश।
रियासती हाई कोर्ट का नई फिल्मों की रिलीज के लिए टिकट की कीमतों में इजाफे पर रोक। प्रभास की फिल्म राजा साहब के लिए टिकट की कीमतों में इजाफे को किया गया था कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद इनकाउंटर में हलाक शेख रियाज की अहलिया को टिमरीज में मुलाजिमत, हाफिज मोहम्मद लई खान की कामयाब नुमाइंदगी। उप्पल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चीनी मांझे की जद में आकर शदीद जख्मी। सड़कों पर सफर करते वक्त मोहतात रहें, पुलिस की अपील। चाइना मांझे के इस्तेमाल से भी किया खबरदार। रियासत शदीद सर्दी की लपेट में, दिन में 11 बजे तक भी सर्द हवाएं। आइंदा 3 दिन तक सर्दी का असर बरकरार रहेगा, महकमे मौसमियात का बयान। सोमनाथ मंदिर की 1000 साला तकरीब में मोदी की शिरकत। औरंगजेब और गजनवी को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। कहा औरंगजेब और गजनवी हो गए दफन, मंदिर वहीं खड़ा है। मौजूदा दौर में हिंदुओं को मुत्तहिद होने की जरूरत, यूपी में मोहन भागवत का बयान। और इंडियन आइडल 3 के फाते प्रशांत तमांग की 43 साल की उम्र में अचानक मौत, इंडस्ट्री में गम की लहर। इसके साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।